یاسمین فاطمہ بنت سید تصور حسین علی کی حضور حضور کو ارسال فرمایا۔ تمہارا صاحب نہ کبھی بہتا نہ کبھی بھٹکا، اور وہ تو اس وقت تک نطق بھی نہیں کرتا جب
زبان سے جو بھی نکلے گا وہ میرا ہی کہلائے گا. توجہ کیجیے گا بھائی, ابھی عرصہ لگے آپ کی کتاب کر رہے ہیں, پوری توجہ رکھیے گا. اب جو بھی میں ادا کروں گا وہ میرا کہلائے گا اس وقت تک کہ جب تک کہ میں امانت کا خیال رکھتے ہوئے یہ نہ کہہ دوں کہ یہ قول معصوم ہے, یہ میرا جملہ ہے. توجہ ہے میرا مطلب؟ تو اب یہ امانت رسول خدا کا عالم ہے کہ جس لسان مبارک سے قرآن مجید یعنی اللہ کا کلام جاری ہو رہا ہے, اسی لسان مبارک سے حدیث بھی جاری ہو رہی ہے. اب یہ رسول اللہ کی امانت نہیں تو اور کیا ہے کہ انہوں نے قرآن کو قرآن کہا, حدیث کو حدیث کہا. توجہ ہے میرا مطلب؟ اچھا پوری توجہ رکھیے میرا مطلب, یہ امانت محمد رسول اللہ کا عالم ہے. اور وہی محمد رسول اللہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. ہر مسلم شریف کی میں بھی حدیث ہے اور قیامی کی حدیث ہے, متفق علیہ حدیث ہے. یہ اہل سنت کی کتب میں بھی ہیں, اہل تشیع کی کتب میں. ہر پیدا ہونے والا بچہ کل مولود علی فطرت الاسلام, ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر ہوتا ہے. پالنے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. توجہ ہے جاوید بھائی, آپ اسلام رکھیے, ذرا سمجھیے بھائی رسول اللہ کی حدیث ہے اور رسول کی ضمانت خدا نے لی ہے. نہ کبھی یہ بہکا نہ کبھی بھٹکا, تو جب وہ بہک نہیں سکتا, بھٹک نہیں سکتا, تو اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ حدیث بیان کرے, وہ بھی تابع وہی ہے, قرآن بیان کرے تو بھی تابع وہی ہے. یعنی حدیث کی صورت میں بیان کر رہا ہے تو بھی اللہ کا دیا ہوا علم ہے, قرآن کی صورت میں بیان ہو رہا ہے تو بھی اللہ کا دیا ہوا علم ہے. بس فرق یہ ہے حدیث میں اور قرآن میں کہ قرآن میں الفاظ بھی اللہ کے ہوتے ہیں, علم بھی اللہ کا ہوتا ہے. حدیث میں علم اللہ کا ہوتا ہے, الفاظ رسول کا ہوا کرنا. سلامت رہیے, مولانا کو سلامت رکھیے, مولانا ہی کرتے رہائے. توجہ ہے اللہ حضرات کے حضور, ذرا سے ان مننوں کو میں آگے لے کر چلوں گا. اب جناب رسول خدا کیا فرما رہے ہیں؟ کل مولود علی فطرت الاسلام, کل مولود یولد علی فطرت الاسلام, ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر ہوتا ہے. پالنے والے اسے اپنی جیسا بنا دیتے ہیں. یعنی یہ پرورش کا معیار بتایا گیا. اب یہاں دیکھیں رسول خدا نے یہ نہیں کہا کہ ماں باپ اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. اب تو ذرا سا غور کریں, بہت قریب آئے ہوں بھائی, یہ نہیں کہا بلکہ یہ کہا کہ پالنے والے جیسا پالنے والا ہوگا ویسا پلنے والا ہوگا. اور پرورش یاد رکھیے کہ پرورش کی ہدایت ہمیشہ 6 یا 7 سال کے بعد ہوا کرتی ہے. اس سے پہلے ہدایت پرورش نہیں ہوتی. 4-5 سال کی عمر میں آپ بچے کو سکھاتے ہیں, بیٹا پڑھو, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے, معصوم زیادہ ہے, معصوم زیادہ ہے, رسول 1,24,000 رسول ہے, انبیاء ہیں, رسول 313 ہیں, بندے پاک ہیں. یہ ابتدائی دور میں جب ابتدا ہوتی ہے تو 5 سے 6 سال کی عمر میں سکھایا جاتا ہے. یعنی پرورش جو شروع ہوتی ہے تو وہ 5 اور 6 سال کی عمر سے شروع ہوتی ہے, بچپن سے نہیں ہوا کرتی. 5 سال تک کوئی لاگو نہیں ہوتا, 5 سال کے بعد لاگو ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ ابو طالب کی گود میں محمد 7 سال کے بعد آئے کیوں تھے. مولا کو سلامت رکھے, مولا ادھر کا روانہ نے کہا کہ میں اسی انداز میں لے کے چلوں گا. ذرا صحیح پہلو کو پر غور کرتے چلے جائیے گا, اور پھر ذرا صحیح پہلو پر خیال کریں کہ پرورش صرف سواری سکھانے کا نام نہیں ہے. دیکھیے چلیے میں سہارا لوں گا چھٹے معصوم کی حدیث سے جو
मासूम फरमाते हैं कि बच्चा वो नहीं सीखता जो तुम सिखाना चाहते हो। बच्चा वो नहीं सीखता जो तुम सिखाना चाहते हो, बच्चा वही सीखता है जो तुम उसके सामने अमल करते हो। देखिए खुदा अमल को पसंद करता है, ज़बानी दावों को पसंद नहीं करता। ठीक भाई साहब, सैकड़ों हदीसें आपने मेरी सुनी, जरा सा हट कर एक बयान आप अल्लाह के अज़ान के हवाले करूंगा। ये अब आप मेरी इसमें मेरी मेहनत को, ये मेरी ज़हानत को मिटा देंगे कि मैं इशारे सवाब और फज़ाइल दोनों को मिला के लेके चल रहा हूँ। ठीक है ना? देखिए अल्लाह ज़बानी दावों को पसंद नहीं करता, इसलिए कि अल्लाह का ईमान का जो पहला कलमा है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐसे ही है, ठीक। अच्छा, तो अब जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया उसे तो मोमिन हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए ना खुदा की निगाह में मोमिन। मगर कुदरत के ऐलान कर रही है वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। और जमाने में कुछ ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि हम ये कवायद देते हैं, हम अल्लाह की तौहीद पर ईमान रखते हैं, उसकी आखिरत पर ईमान रखते हैं, मगर वो मोमिन गया ला इलाहा इल्लल्लाह।
قرآن کہہ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، ہم ایمان رکھتے اللہ پر بھی اور اس کی یوم آخر پر بھی، مگر وہ مومن نہیں. یعنی لا الہ الا اللہ یہ جو توحید کا زبانی دعویٰ کر رہا ہے وہ مومن نہیں. قرآن کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، مسلمان کی نظر میں تو سارے ہی ستارے ہیں. ہم تو نگاہ خداوندی میں بات کر رہے ہیں، نگاہ خداوندی میں سے لا الہ الا اللہ پڑھنے والا مومن نہیں. اچھا جب یہ بات کہیں گے تمام مسلمانوں نے کہا بالکل بات تو صحیح، اس لیے کہ توحید کی گواہی تو عیسائی بھی دے رہا ہے، توحید کی گواہی تو یہودی بھی دے رہا ہے، لا الہ الا اللہ تو پڑھ رہا ہے نا. عیسیٰ کو بیٹا مانتا ہے غلط بات ہے، مگر اللہ کو تو مان رہا ہے. توجہ ہے ادھر مان رہا ہے نا، تو توحید کی گواہی وہ بھی دے رہے ہیں. توحید کی گواہی تو عیسائی بھی دے رہا ہے، یہودی بھی دے رہا ہے، توحید کی گواہی تو ہندو بھی دے رہا ہے. اس لیے کہ ہندوؤں کے یہاں بھی پرمیشور ہے، باقی سارے اوتار ہیں. بات کرنے کے علاوہ یہ سبجیکٹ بہت مشکل سبجیکٹ ہے، لیکن یہ بات عرض کرنے جا رہا ہوں. اس اور جملہ کہوں تو مسلمانوں کا اللہ بھی آسمان پر بیٹھا ہے، ہندوؤں کا بھگوان بھی آسمان پر بیٹھا ہے. جتنا دور دور کہنے کا تو کہا گیا کہ ضروری نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہی مسلمان ہو جائے. اچھا جناب اگر لا الہ الا اللہ پڑھنے والا مسلمان نہیں تو کون؟ قاضی جب تک لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ کا کلمہ نہ پڑھ لے گا. جناب جب تک لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ کا کلمہ نہ پڑھ لیا جائے اس وقت تک ایمان مکمل. چلیے جناب ٹھیک ہے، تسلیم کر لیتے، مگر ہم کیا کریں؟ ہمارے سامنے سورہ منافقون بھی تو موجود ہے. بڑے اطمینان سے بڑے چھٹے لہجے میں نے بات کر دی ہوں بھائی سورہ منافقون ہے کہ نہیں. رجاء المنافقون قالوا نشهد، میرا حبیب یہ جو منافقات کی بس میں آ کر بیٹھتے ہیں، یہ جو منافق آپ کی بس میں آ کر بیٹھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ
میرے حسین کا جو بھی غلام ہو جائے تو حور کی طرح علیہ السلام ہو جائے. کسی کی کر دے اگر پرورش ابو طالب، کسی کی کر دے اگر پرورش ابو طالب تو وہ رسول بنے یا امام. عمل ہے تو ایمان
सिफतें बाप में होती हैं। इतने खामोश बैठेंगे लोग तो मैं भी बैठा हुआ। बेटा बाप का आईना लेकिन नस्ली भी। अच्छा ये खाना करना हुजूर हर नस्ल अपने असलाफ की हिफाजत करती है। जो जिस नस्ल का होता है वो उसकी हिफाजत कर रहा होता है। दोनों शैतान उठे, ठीक इधर से वो उठे। 2 दिन से तो अबू तालिब देख ही रहे थे, लेकिन तीसरे दिन अबू तालिब से भी बर्दाश्त नहीं हुआ। जैसे ही वो उठे, इधर से वो दोनों उठे, इधर से जनाब अबू तालिब उठे, और उठने के बाद एक हाथ एक शैतान के कंधे पर, ऐसे ही एक हाथ एक शैतान के कंधे पर रखा, दूसरा हाथ दूसरे शैतान के कंधे पर उठा। दोनों को अपनी जोर ताकत से अबू तालिब ने देखिए, कुफ्र की जिंदगी से ताकत है। अब शहर में रखिएगा, मैं जुमला अपना जुमला नहीं कहूंगा, अल्लामा इरफान हैदराबादी का जुमला दोहरा रहा हूं, ठीक है। खड़ी में भी बदले, मेरे चचा भी है, मेरा हाथ बनता है। तवज्जो रखिएगा, दोनों को जनाब अबू तालिब ने अपनी जोर ताकत से बिठाया। एक वैसे
तालिब ने रिसालत को उठाया, उस दिन के बाद रिसालत कभी बैठी नहीं है। जिंदगी ही में रहते हुए इस्लाम की नुसरत नहीं की है। अबू तालिब ने तो उस नुसरत को अपनी औलाद में उन्हें दी। देखिए आप मैं क्या करूं, ये जरा से गौर करते चले ना। अबू तालिब ने नुसरत इस्लाम को अपनी औलाद की रगों में उन्हें ला। पहला नुसरत इस्लाम का फरीदा ही जनाब अबू तालिब ने अदा की सारी जिंदगी। और फिर यही नहीं, देखिए कमाल ये है कि जनाब अबू तालिब ने तो अपने अमल से सिखाया भी है, बताया भी है। नहीं है तो मुझे बताओ कि जिस जमाने की ये तारीख है कि जहां जनाब खदीजा, जनाब रसूल खुदा और मौला मुत्तकियान ये तीनों नमाज पढ़ रहे थे। एक जुमला कहूं इसी वक्त आया। देखिए तारीख ये तो बतानी है ना। और आपने तारीखों में कहा कि बच्चों में सबसे पहले फला साहब इस्लाम लाए, बड़ों में सबसे पहले फला साहब इस्लाम लाए। तो ये तो ज़बानी बात हो रही है ना। आओ मैं तुम्हें अमली बात दिखाऊं। अमली तौर पर तारीख बताई है, सबसे पहले नमाज या तो अली ने पढ़ी है या खदीजा ने पढ़ी है। तो अमल के नतीजे में देख लो, पहला इस्लाम या तो अली लाया या खदीजा लाया।
कोशिश करते हुए भेजिए बता मोहम्मद। के दरबार में ऐसी पेश नहीं होगी कि ऐसी बात नहीं मनवाई गई। माना गया था अबू तालिब के कलाम को देखकर, अबू तालिब के कलाम को देखकर माना गया था, पनाह तो दी गई थी। जनाब अबू तालिब के कलाम को देखकर पनाह दी गई थी ना कि दोस्त का दोस्त के पास, दोस्त का दोस्त के पास नाम आया है तो दोस्त ने दोस्त को दोस्त रखते हुए दोस्त के लोगों को बना दे दी। कायदा तो यही है ना। गो के वो इस्लाम का ज़ाहिरन दुश्मन था, ठीक है, मुखालिफ तो था नहीं, ईसाई था, मुसलमान तो था नहीं, मगर चूंकि दोस्त का खत गया, इसी
सैयदा की परवरिश किसी और माँ ने नहीं की। सैयदा की परवरिश किसी और माँ ने की हो, खिदमतें तो की नहीं, ठीक है, खिदमतें तो की, चाहे मुसलमान हो या चाहे जो भी, खिदमतें की हैं। ये परवरिश का मामला है, और परवरिश ज़ुर्रियत को तैयार करती है, और अल्लाह ने किताब और नबूवत और हिदायत ज़ुर्रियत में रखी है, उम्मत में नहीं रखी। ठीक है, तो ये मैं बड़े क्या करूँ, ऐसे अहकामात आ जाते हैं कि समझ करना जरा मुश्किल हो रहा होता है। पूरी लड़कियों में एक दलील लेके आऊंगा, देखिए हिदायत हमेशा खुदा ने ज़ुर्रियत में रखी है, उम्मत में नहीं है। उसकी दलील ले लीजिए, जब जनाब इब्राहिम को इमामत मिली है, इन्हीं जायलों का लिना से इमामा है या नहीं है, इन्हीं जायलों का लिना से इमामा, हम आपको नास का इमाम मुकर्रर करते हैं। तो जनाब अबू तालिब ने उम्मत के लिए दुआ नहीं की थी, बल्कि जनाब इब्राहिम ने उम्मत के लिए दुआ नहीं की, बल्कि जैसे ही इमामत मिली है जनाब इब्राहिम को कि इन्हीं जायलों का लिना से इमामा, और ही जनाब इब्राहिम ने पलट कर ये दुआ की थी, मालिक व मिन ज़ुर्रियती, क्या ये मेरी ज़ुर्रियत में जाएगा? यानी इब्राहिम भी जानते थे हिदायत का ओहदा अल्लाह उम्मत को नहीं देगा, ज़ुर्रियत को अता करेगा। तो आखिरी बातें करने जा रहा हूँ, मैं बहुत तेजी से कर पा रहा हूँ, तब कहीं ना कहीं बातें होती जा रही हैं। यानी हिदायत हमेशा ज़ुर्रियत में रहेगी, और जब ज़ुर्रियत में हिदायत आएगी तो ज़ुर्रियत के पालने वाले भी हाथी होंगे, खुद ज़ुर्रियत भी हाथी होगी। अब ये हिदायतों का दायरा महदूद भी है, लामहदूद भी है। देखिए, नबियों की अगर हिदायत में आप जाएं तो बाज़ नबी ऐसे हैं कि सिर्फ घर वालों पर नबी है, ये भी तारीफ कह रहे हैं, ऐसे हैं बाज़ नबी और औसिया ऐसे हैं जो सिर्फ घर वालों पर है। कुछ का मर्तबा ज़्यादा बढ़ गया, कुछ की मराठी बढ़ते चलेगा, और फिर ये चलते चलते उलुल अज़्म पर चला गया। ठीक है, उलुल अज़्म होते हैं जिसकी पूरी कायनात पर इसका है हिदायत हो। ठीक, अब पूरी तरह से रखिएगा, यानी कुछ हाली ऐसे हैं, नबूवत में भी कुछ हाली ऐसे हैं जिनका सिर्फ हिदायत घर वालों पर ही है, घर वालों से हटकर वो हाली नहीं है। अब घर वालों पर है, तवज्जो नहीं करेगा, मगर यहाँ मामला घर वालों का हद तक नहीं रहा, इसलिए कि घर वालों की हद तक का मामला मोहम्मद रसूलुल्लाह से पहले तक था। मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत पूरी कायनात पर फैली हुई है, तो जब शरीयत कायनात पर फैली है तो फिर उस शरीयत की जो ज़ुर्रियत की हिदायत होगी वो भी घर वालों तक नहीं होगी, पूरी कायनात तक होगी। तो इसीलिए बाद रसूल खुदा मौला मुत्तक़ियान पूरी कायनात के हाली, जनाब सैयदा पूरी कायनात की हालिया है, और फिर चूंकि बात ज़ुर्रियत की है तो फिर नस्ल में गए। तो जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह और अली वलीउल्लाह अपने असलाफ की सिफत के अमीन है, इसी तरह ज़ैनबुल कुबरा भी अपनी इस्लाफ की अमीना है। अगर इस्लाफ की अमीना नहीं है तो उन्होंने बताओ कि इस्लाम की माली एतबार से मदद करने वाली पहली खातून का नाम है खदीजतुल कुबरा। उसके बाद आईन की हिफाजत का जो अमीना है वो है जनाब सैयदा, बड़े इख्तियार से बुलाता है, आईन की हिफाजत की अमीना का नाम है सैयदा। आईन पूरा कुरान है, और फिदक में सैयदा में आप जुमला आराम से
जनाब ज़ैनब को आयतिन मिन आयातिल्लाह कहा गया, आयात खुदा की आयत। और जिस तरह इस्लाम को हुसैन ने अपना लहू पिलाकर करबला के इत्तेजार में इतना मशहूर कर दिया कि कोई इस्लाम की बुनियादें हिला नहीं सकता। इसी तरह जनाब ज़ैनब ने अपने किरदार और अपनी गुफ्तार से हुसैनियत को इतना मशहूर कर दिया, क्या हुसैनियत पर कभी कोई आंच नहीं था। ये किरदार जिस तरह एक जुमला कहता हो जाऊंगा कि आपने दरबारे इस्लाम में भी सैयदा का खुतबा सुना है, जहाँ आयतों पर आयतें, वहाँ आइन की हिफाजत हो रही है। तो एक खुतबा जनाब ज़ैनब का भी है जो दरबार यजीद में गूंजा था, और इसी खुतबे ने ईमान और निफाक को वाज़ेह किया। इसलिए इस खुतबे की एक आयत बड़ी अजीब है कि जहाँ जनाब ज़ैनब ने ये कहा, ये आयत पढ़ी थी कि और काफिर ये गुमान न करें कि उन्हें जो ये ढील दी जा रही है वो इसलिए है कि उनके लिए उसमें कोई बेहतरी हो, वो इसलिए नहीं है बल्कि इसलिए है कि वो अपने बाकी के गुनाह भी पूरे कर ले। दरबार यजीद में खड़े होकर सैयदा ने ये आयत पढ़ी। ये सैयदा का अज़्म भी था, अली की जुर्रत भी थी जो बोल रही थी दरबार यजीद में, वरना दरबारों में जाकर तो बड़े बड़े ईमानदारों की ज़बानें खामोश हो जाती, मगर ये सिफत सैयदा की अमीन बोल रही थी, जलाल हैदर कर्रार की वारिसा बोल रही थी। मगर अल्लाह इस इस्लाम को कायम करने के लिए और इस हुसैनियत को इतना फरोग देने के लिए इस बीवी ने दुख बहुत उठाया। अल्लाह ये जुमला कभी किसी ने मुझे कहा था, वो जुमला आज भी मेरे ज़हन में बैठा है, और वो ये था कि कारे रिसालत पे पत्थर तो है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी इब्तिदाए रिसालत पे पत्थर खाए थे, इधर जनाब ज़ैनब ने भी कारे रिसालत पे पत्थर खाए। उस वक्त ये था कि रसूल के हाथ खुले हुए थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह जब पत्थरों से लहूलुहान होकर वापस आए तो कफीले रिसालत अबू तालिब जिंदा थे। सबको घरों में बुला लिया था, मेरे बच्चे के साथ ये किसने ऐसा सलूक किया, मगर हाय में करबला की ज़ैनब जो पत्थर भी खाती रही और कोई पुरसाने हाथ भी न रहा। कोई गम न दे सिवाय तुम्हें हुसैन के, बड़े दर्द उठाए हैं इस बीवी ने। मोहम्मद
मगर उसके बावजूद जब भाई के बेकफन लाशे को देखा था, सरगुरीदा लाशे को देखा था, तो बेइख्तियार सरों के सर के बाल को झटका देकर हुसैन के लाशे पे लाकर यही कहा था, भैया अगर मेरा बस चले सारी जिंदगी तेरे लाशे पर बाल का साया चला 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 मारा कोई अम्मा ने सिवाय बने हुसैन के दो जुमले सुन लीजिएगा नजारो मारे करीब है अल्लाह इतना कहा है अल्लाह किसी बहन को ये वक्त न दिखाए जो जनाब ज़ैनब ने देखा है सरगुरीदा लाशा कर तो वही गिरा था मगर ज़ैनब को ऐसे आसानी से तो नहीं मिला ये लाश सुनेंगे जुमला जरा दोनों बहनें जनाब उलमा ने पढ़ा है जनाब उम्मे कुलसूम और जनाब ज़ैनब 11 मुहर्रम को जब उस मुकाम पर बैठी आई है कि जिस मुकाम पर हुसैन शहीद हुए थे दोनों को हुसैन नजर नहीं आया चारों तरफ असलहे का ढेर था जनाब ज़ैनब ने जनाब उम्मे कुलसूम से पूछा बहन भाई कत्ल तो यही हुआ था कहाँ बहना जगह तो यही थी कहा फिर मेरा हुसैन नजर नहीं मेरा हुसैन नजर नहीं आ रहा दोनों बहनों ने तलाश किया है अल्लाह हाथ तो पसे पुष्ट बंधे थे असलहे के ढेर को कोहनियों से हटाना शुरू किया कहीं नेज़े चुभे कहीं हले चुभी हटाते हटाते जब हुसैन की लाश नजर आई तो इस आलम में थी पूरा जख्म नेज़ों से छिदा हुआ था और सितर पर सर भी नहीं था तस्वीर जिस्म पर सर भी नहीं था ऐसे में हुसैन की आवाज आई थी मेरी बहना तुझ पर सलाम अल्लाह इधर सरगुरीदा सर से सलाम की आवाज आई है और मातम कर लेना मेरी माँ बहनों जुमला सुन लेना जैसे ही सरगुरीदा सर से आवाज आई ज़ैनब ने चौंक कर कहा बाजा तेरा सर कौन ले गया तस्वीर जनाब ज़ैनब ने पुकार कर कहा था माँ जाए तेरा सर कौन ले गया लाशे हुसैन से आवाज आई बहना तेरी चादर कौन ले गया ज़ैनब जो तेरी चादर ले गया वही मेरा सर ले गया ज़ैनब मुश्किल मरहला है मेरे सर तलवारों में जाना है बाजारों में जाना अला लानतुल्लाह अलल कौमि ज़ालिमीन बाइला बाप चाहता मसूलीन अलैहिस्सलाम और आप शौक़ अलैहिस्सलाम हमारी इस अलीम की इबादत का सवाब मरहुमा की रूह को इरशाद अल्लाह उनकी दिल उनके इंतकाल के दिन से लेकर आज जो कुछ हुई कुरान खाना की गई है या भी शर्ता पढ़ी गई उन सब का सवाब मरहुमा की रूह को इरशाद करना